Good evening, everyone. Good evening, sir. I'm Anu Bhatnagar, webinar executive at Law Seco. I welcome you all for this session. So, for today's session, we have this topic: insights and strategies over cracking the Madhya Pradesh judicial services. Yeah, so first of all, we were getting a lot of comments from the aspirant that please do conduct this webinar. Also, the Madhya Pradesh is the most targeted state when it comes to Hindi states, right? So, to give insight and detailed comprehensive strategies about the same, we have with us as an expert, judicial officer, of course, Devansh Agrawal, sir. So it's a pleasure to have you on our webinar, sir. Thank you. Yes, sir. To introduce our expert today, Devansh Agrawal, sir, did his BA LLB from Criminal Honors from Institute of Law, Nirma University in 2016. And after completing his LLB, he started practicing. And during his practice, he worked in a district court for 2 years. And while practicing, he cleared MP Judicial Services with rank 26. So that's a good achievement, sir. Uh, so, uh, so before we get into the question and answer session, I'll ask the very basic question, sir. So, tell us something about yourself, why you decided to choose law, and what was your motivation behind joining judicial service? Okay, first of all, a very warm good evening to everyone. Now, see, I was basically a third generation lawyer in my family. So, nobody expected in this generation that anyone from this generation is going to pursue law, but it was my own decision when I was in 11th standard that night. I need to pursue law and I need to do something in law because this is a thing which interests me a lot. And another reason was I was very bad at science. I wasn't very bad, but I was very non-interested in science and other accounts and subjects. So the only option which I choose that would interest me and I would be happy pursuing it was law. So I decided to pursue law. So that was one of the reasons which made me pursue law. And the another reason I think so, see, when I was in Nirma University, I had many options. For example, I have interned with Amarchand Mangaldas, I have done internships with Supreme Court senior advocates and everyone. But when I was working with different corporate firms in High Court and Supreme Court with big lawyers, so I realized that the kind of work they do is of a nature where somewhere I'm missing basics. So I wanted to learn basics. So I decided that this is not the place for me. This is not my cup of tea. And I decided that I'll join district court. I'll work in district court. And later on, I decided that working in district court, so I can also work as a judge. So I decided that it's better to pursue my career as a judge rather than a lawyer. So I decided that अब मेरे career को lower court में ही work करना है, so let me work as a judge, and I'm here with you all. Right, so it seems like you've been through a motivational journey, yeah, and since you said that you also worked at such a good clear law firm that is Amarchand Mangala, so that's also commendable, right, sir. Today we are about to discuss the strategies basically, right, sir. So first of all, just tell us like how and when you started with the preparation of judiciary examination in your law school or after you decided. So yeah. In the very final year, not my very final year. See, there's a strategy in the college that after third year we have to pursue one of the honors courses. My college used to provide 4 of the honors courses: IPR, Constitutional Law, Corporate Law, and that Criminal Law. So somewhere in my mind, I had this conception that Devansh, you have to work in lower court. So I had 2 options for working in lower court, either as an advocate or as a judge. So I was very clear. So at that very moment when I entered my 4th year, I was clear. My mind was very clear. So I pursued criminal law because I think so. I thought that this is the stream which is going to help me a lot while pursuing my career in lower court. Because in lower courts the application of constitution is very less because it's mainly the subject of High Court and Supreme Court.
though all other subjects are the part of constitution only, but if we talk about the sheer application of the constitutional law, then lower courts are not the part of it. So when I entered the fourth year, I was very clear कि देवांश आपको judicial career करना है. So as soon as I completed my fifth year, I started preparing for judicial. So that moment, as soon as I did my college, I didn't reach the day, a single day. I took a break for around 6 months or 7 months, and I prepared wholly and solely by sitting at home or going to different stores and doing good. Then after I was prepared, I thought that my preparation has been substantially done and I am done with my subject. So, there is a pattern that every year the state will come out with different vacancies and they'll come out with different posts. So you have to wait. And I am highly impatient person. I cannot wait. So as an alternative, I had very good option that I was third generation lawyer. So there was already a good office going at my place. So I decided to join my office and I joined my office. And once I joined my office, I realized that मेरे को judiciary के लिए time ही नहीं था. Because it was so much hectic and full of work कि I was completely into litigation. But my father was very determined. He was like, नहीं तुझे judge बनना है, you have to be judge. I said कि इसकी अच्छी practice है and I am enjoying this. तो मुझे लगता है कि अब मेरे को 2 साल हो गए, मुझे शिफ्ट होना चाहिए हाई कोर्ट. But my father was like, एक last attempt दे ले. It was my second attempt. In my first attempt, I couldn't clear the mains. I actually missed the mains by 2 months. So it was my second attempt, and my father said कि इस बार देने नहीं होता, then you shift to high court. So I gave it, and luckily I cleared it. So I'm here with you. And see, so in this way, I decided कि ऐसे करना चाहिए मुझे. This was the main thing which lead me to judiciary. Right. So yeah. So the thing which you said that through this we can conclude that you should also have a backup option because one thing which I believe is like अगर judiciary के एग्जाम में 10,000 एस्पिरेंट अपियर होते हैं तो उसमें से 10,000 में से प्रीलिम्स में काफी सारे आपके छठ के अलग हो जाते हैं. Only few of them clear prelims. ठीक है. That means वैकेंसी के 10 times जो होते हैं वो prelims क्लियर करते हैं. उसमें से जो मेन क्लियर करते हैं वो आपके 3 टाइम्स क्लियर करते हैं और उस 3 टाइम्स में से जो 1/3 होते हैं वो इंटरव्यू क्लियर करते हैं. अब जब इंटरव्यू में 3 टाइम्स अपेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 सीट्स हैं तो इंटरव्यू 300 लोगों का कंडक्ट होता है. तो आई डोंट थिंक सो कि उन 300 में से कोई भी नॉन वर्दी होता है. ठीक है, सब वर्दी होते हैं. इट्स अबाउट अ लिटिल लक. शायद वो सही बोला है किसी ने कि 2 घंटे में आपको जज नहीं कर सकते. तो मुझे लगता है कि मेरे से भी वर्दी लोग थे पर उस दिन उनका लक नहीं था, तो आई गॉट सिलेक्टेड. और शायद मैं भी वर्दी था, ये भी हो सकता है. ठीक है, बट द थिंग इज कि आप वर्दी हो इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल गेट सिलेक्टेड इनटू दिस प्रोफेशन बिकॉज द सीट्स आर लिमिटेड. एंड जुडिशरी इज नॉट द ओनली ऑप्शन. कि जुडिशरी में नहीं हुआ तो देयर इज नथिंग इन माय लाइफ हैज बीन फिनिश्ड. So you should always keep a backup option कि जुडिशरी में नहीं हुआ तो क्या हुआ नहीं हुआ. मैं इतना वर्दी हूँ कि अगर मेरा जुडिशरी में नहीं होता तो मैं किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर लूंगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे संग था कि अगर मैं जज नहीं बनता तो मैं प्रैक्टिस में अच्छा कर लूंगा. आई वॉज वेरी श्योर दैट जब मैं कोर्ट जाता था आई हैड इनफ केसेस कि अगर मैं कोर्ट जाके प्रैक्टिस भी करूंगा देन मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होता लाइफ में अगर मैं जज नहीं बनता. तो द थिंग इज कि लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड सिलेक्शंस हैं. लिमिटेड सिलेक्शंस में आप सोचो अगर भारत में 10 लाख बच्चे अपियर होते हैं हर साल तो 10 लाख की 10 लाख तो बन नहीं सकते. 10 लाख में से अगर 1 लाख बच्चा जज बन रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो 9 लाख बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे. तो दे हैव टू डू समथिंग एज एन ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन. So I think so you should have a backup option. That's very important, not while preparing for judiciary, for preparing any other competitive exam. चाहे आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जज की, चाहे आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, you should always have a backup option. तो प्रायोरिटी आप अपनी यही रखो, बट इतना एक करियर बना के रखो कि मेरा इसमें नहीं हुआ then I'll have something in my hand. ऐसा ही नहीं हो ना कि जुडिशरी में नहीं हुआ now I'm empty hand. I have nothing in my hand, so always keep a backup.
Right. So basically, like we should have a backup plan, of course. So sir, like apart from MP judiciary, क्या like you appeared for another state as well, like See, there is a strategy which you need to maintain, and there, मतलब see, हर स्टेट का थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट सब्जेक्ट। अगर आप सोचो कि आप 29 के 29 राज्यों पे फोकस कर लोगे, देन दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। फर्स्टली तो आप लैंग्वेज के बेसिस पे टर्मिनेट करो स्टेट कि भाई जैसे मैं हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी हूँ, मेरे को इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। तो मैं अपनी प्रायोरिटीज लिमिटेड रखूंगा। शायद मैं एमपी दे सकता हूँ, यूपी दे सकता हूँ, दिल्ली दे सकता हूँ, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसी स्टेट मैंने 6-7 पहले सेलेक्ट की कि हाँ ये स्टेट है जहाँ मैं बेसिक क्वालिफिकेशन रखता हूँ, बिकॉज लैंग्वेज इज द बेसिक क्वालिफिकेशन। वो नहीं आती तो आप नहीं सीख सकते, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी मैंने ये रखी कि मैंने अब ये देखा कि इन स्टेट में से किन स्टेट का जो सब्जेक्ट है वो सिमिलर है। हमारे टाइम पे राजस्थान में 47 सब्जेक्ट होते थे। तो बात अगर मैं राजस्थान पे फोकस करता हूँ तो राजस्थान के लोकल सब्जेक्ट ही अराउंड 30 थे, तो शायद मैं राजस्थान पे ही फोकस करते रह जाता, मेरी स्ट्रेटेजी थी। बिकॉज एक तो मैं राजस्थान से था भी नहीं, अगर मेरी होम स्टेट होती तो शायद राजस्थान मेरी प्रायोरिटी रहा होता। तो मेरा पहला एलिमिनेशन हुआ भाई राजस्थान। फिर मैं यूपी पे आया, मैंने यूपी में देखा यार इसमें एक पेपर पूरा जनरल नॉलेज का होता है, एक पेपर इसमें करंट अफेयर्स का होता है, और इसमें बहुत वास्ट आपकी जीके और पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट। correct, एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट। मेरा इंटरेस्ट था कि मैं लॉ में बहुत अच्छा हूँ, बट मैं इतना सब नहीं पढ़ सकता। तो मैंने अपनी प्रायोरिटी से यूपी को भी निकाला। फिर मैंने अपनी प्रायोरिटी में देखा छत्तीसगढ़ का सिलेबस सेम है, दिल्ली के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, 4-5 सब्जेक्ट ज्यादा है, तो इतना तो आपको मैनेज करना पड़ता है। आप उत्तराखंड का दे सकते हो, हिमाचल का दे सकते हो, और एमपी का, मतलब अपनी प्रायोरिटीज खुद के हिसाब से सेट करो। दिस वाज माय प्रायोरिटी। मैं जीके में नहीं हूँ अच्छा, तो मैंने यूपी को एलिमिनेट कर दिया। एमपी में जीके बहुत कम आती है, तो मैंने एमपी को प्रायोरिटी रखा कि भाई 20 मार्क्स की जीके आती है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड जीके नहीं आती है, करंट से आता है, तो आई कैन एटलीस्ट ट्राई फॉर एमपी। बट यहाँ यूपी में जाए तो यूपी में एक अलग से पेपर होता है, और नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स, मेन में एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। फॉर दैट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मेरा मन नहीं था, मेरा नहीं लगता जीके पढ़ने का मन, तो अपनी प्रायोरिटी अपने हिसाब से सेट। right, so yeah, that's the good thing you stated, that first you need to bifurcate the syllabus accordingly, because आजकल we have seen the strategies in the aspirant कि उनको ये लगता है कि हर स्टेट का देखिए we are practicing something, but that somehow don't work, and that concluded in a stress, you know, कि फिर अब निकलता नहीं है तो they get into stress or something. Sir, let's talk about like pre followed by mains and by interview. One by one we take this. So sir, how you prepared for your preliminary examination? Because like yes sir, as in mains in MP judiciary we have seen that there is a 150 marks paper. उसमें से लॉ में अगर आप अच्छे हैं एंड स्टिल मतलब एमपी का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, सो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर एमपी जुडिशरी, प्लीज टेल अस लाइक फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ विद द लॉ। सबसे पहले 100 मार्क्स का 110 मार्क्स का लॉ आता है वहाँ पर, ठीक है। तो आउट ऑफ 110 आई थिंक तो उसमें 12 सब्जेक्ट होते हैं, 110 में आपके 12 सब्जेक्ट होते हैं। तो द बेसिक मटेरियल विच यू रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स इज लाइक आप डायरेक्ट पढ़िए, एक कोई भी नोट्स या फिर कोई भी जो सबसे पतली बुक होती है वो उठा के पढ़िए। थर्डली आप लास्ट ईयर के पूरे पेपर्स लगाइए, और एक ऑब्जेक्टिव से कोई भी बुक उठा लीजिए, यूनिवर्सल और एमए राशिद, दैट वुड बी सफिशिएंट आपके प्रीलिम्स निकालने के। प्रीलिम्स निकालने के लिए जितनी बार डायरेक्ट पढ़ेंगे और जितनी बार पास्ट ईयर पेपर्स लगाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर सेक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यू विल कंप्लीटली, फर्स्टली यू हैव टू बाइफरकेट कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। तो व्हेन यू विल गो थ्रू द लास्ट ईयर पेपर्स एंड एवरीथिंग, तब आपको रियलाइज होगा एक बेसिक रीडिंग तो पूरे डायरेक्ट की लगानी ही है, बट जब हम बेसिक प्रिपेयर करके एडवांस प्रिपरेशन पे आते हैं, वहां यू नीड टू बाइफरकेट थिंग्स कि हमें किस सेक्शन पे फोकस करना है, किस सेक्शन पे नहीं करना है, बिकॉज यू नीड टू रिवाइज थिंग्स। और रिवीजन में आप कंप्लीट डायरेक्ट रिवाइज नहीं कर सकते, तो एक स्ट्रेटेजी होती है कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। विद द टाइम यू विल नो दैट। बेयरेक्ट आपकी बाइबल होनी चाहिए। मेरे बेयरेक्ट अगर मैं प्रिपरेशन टाइम के दिखाऊंगा तो मतलब वो ऐसे रंगीन होते थे, हर उसमें ऐसे गोले लगे होते थे, कुछ अंडरलाइन होता था, एक एरो ऐसा जाता था, उसमें
जैसे लिखा 8 डेज, तो अब मुझे मालूम है कि मेरे को इस सेक्शन में से सिर्फ यही याद रखना है जो सवाल बन के आता है कि कितने दिन का होता है, 8 डेज का होता है। यू अंडरस्टैंड दिस? इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है अपनी स्टडी फॉर दी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में अगर आप बहुत वास्ट मत पढ़िए, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली लॉ पोर्शन, ठीक है, उसमें आप बेयरएक्स लगाइए। बेयरएक्स अगर अच्छी कमांड है बेयरएक्स पे, देन यू डोंट नीड टू गो टू एनी बुक्स मत पढ़िए। पास्ट ईयर पेपर्स एंड यूनिवर्सल, अगर ये 3 लगा लेते हैं तो अच्छी बात है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है अगर, तो फिर मैं बोलूंगा कि आप थोड़े बहुत सेक्शंस में भी जाइए और थोड़ी बुक्स भी पढ़िए, नहीं तो किसी भी एक कोचिंग के नोट्स, मेरे पास राहुल सर के नोट्स थे, ठीक है, तो राहुल सर ने मेरे को पढ़ाया, मतलब राहुल सर से मैंने काफी हेल्प ली है। दिल्ली वाले जो राहुल सर हैं, राहुल IAS से, ही हैज हेल्प्ड मी अ लॉट एंड वो मेरे गुरु भी रहे हैं, तो ही हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। तो मैंने उनके नोट्स से पढ़ा तो बहुत इजीली मैंने पढ़ लिया था, और मेरे पास मतलब जो मटेरियल था वो इतना सफिशिएंट था कि वो पढ़ के मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो। बट यू नीड टू हैव अ ग्रेट कमांड ओवर बेयरएक्स, बिकॉज जो राहुल सर के भी नोट्स होते हैं वो मेंस के लिए होते हैं, बट प्रीलिम्स के लिए यू नीड टू गो थ्रू एवरी सेक्शन ऑफ बेयरएक्स, तो वहां पर आपको बेयरएक्स पे ही कमांड चाहिए। एंड बिलीव मी, पास्ट ईयर पेपर्स वुड बी द बेस्ट की फॉर क्वालिफाइंग एनी स्टेट, बिकॉज वहां से अपन को ज्यादातर सेक्शंस, आज तक क्या होता है, अब नाउ वी आर एट स्टेज जहां पर सारे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब आप क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो आप समझो 50% तो कहीं ना कहीं पेपर रिपीटिशन होता है। जब पेपर रिपीटिशन होता है तो वो 50% तो आप कर लेते हैं, बस वहीं पे आपको आगे वाला जो लिख जाता है वो आपकी सेल्फ मेहनत लेके जाता है। ये हो गया लॉ। सेकंड टॉक अबाउट करते हैं कि इसमें 20 मार्क्स की जीके आती है। जीके 20 मार्क्स की जीके में अराउंड 5 से 7 मार्क्स का लोकल जीके पूछते हैं। लोकल जीके पहले 10 मार्क्स का पूछते थे, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है पैटर्न इन दी लास्ट 3 इयर्स कि दे हैव रिड्यूस्ड आस्किंग अबाउट द लोकल एमपी जीके, ठीक है, तो अब वो 6 से 7 नंबर का लोकल एमपी जीके पूछते हैं। फॉर दैट यू कैन टेक एनी बुक, एक उपकार का छोटा सा बुक आता है, या फिर एक अरिहंत का एमपी जनरल नॉलेज करके, करंट अफेयर्स करके एक बुक आता है, आप वो ले लीजिए। इट्स अ वेरी थिन बुक, यू कैन रीड इट इन 2 nights, मेजर नदियों के बारे में, हिल्स के बारे में, स्टेट के बारे में, सिटीज के बारे में। इट्स बेसिक इंफॉर्मेशन व्हिच यू कैन गैदर फ्रॉम दैट। नाउ कम्स द अदर 15 मार्क्स क्वेश्चन दैट इज टोटली करेक्ट। जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, एक क्वेश्चन वो पक्का स्पोर्ट्स से पूछते हैं, तो मतलब मेरी जीके वीक थी, तो आई वाज वेरी श्योर कि मैं अगर लेटेस्ट स्पोर्ट्स के जितने भी विनर्स हैं वो करके जाऊंगा तो मेरा 1 मार्क पक्का हो जाएगा, और मेरा 1 मार्क हो गया था पक्का, बिकॉज दैट वाज अ स्ट्रेटेजी। मेरे को मालूम था कि वो लेटेस्ट स्पोर्ट कॉलम में से पक्का एक क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन वो पक्का साहित्यकार पे पूछते हैं कि ये किसने लिखी है, ये बुक किसने लिखी है, या फिर ये कविता किसने लिखी है, या फिर दे गिव द नाम ऑफ द फिलोसोफर्स और पोएट्स एंड दे लास्ट की ये इनमें से कौन से पोएट हैं जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। तो वन क्वेश्चन उनका वहां से रहता है, बाकी दे विल फोकस ऑन करेंट। तो इफ यू आर रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, not just that will help you for the prelims, I think that will help you for main. Don't read Times of India. Times of India एक अच्छा न्यूज़पेपर है एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से, बट जहां तक हम अपनी अकेडमिकली बात कर रहे हैं तो अकेडमिकली आई थिंक तो इंडियन एक्सप्रेस, मेरा ओपिनियन है, इंडियन एक्सप्रेस इज द बेस्ट न्यूज़पेपर दो चीजों के लिए। द हिंदू इज ऑल्सो अ गुड न्यूज़पेपर, बट द हिंदू इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एंड बोरिंग, बिकॉज मतलब मुझे जो फील हुआ कि इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, बट व्हेन यू रीड द हिंदू यू विल गेट बोर्ड। बट इंडियन एक्सप्रेस के जो थोड़े से व्यूज लगे मुझे, थोड़े से बैलेंस लगे, एंड आई थिंक तो इट्स इजी एंड इंटरेस्टिंग प्लस हेल्पफुल। तो अगर आप जुडिशरी के लिए फोकस कर रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस इज द बेस्ट न्यूज़पेपर, वो पढ़िए। उसका जो एडिटोरियल कॉलम आता है वो अगर वो आप डेली पढ़ते हो तो मेंस में आपका जो पेपर होगा जिसमें आपको ऐसे राइटिंग का पेपर होता है, तो आई डोंट थिंक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो ऐसे राइटिंग के क्वेश्चन में। प्लस अगर आप न्यूज़पेपर वैसे भी पढ़ रहे हैं देन आई थिंक तो आपका प्रीलिम्स में जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा वो निकल जाएगा। अदरवाइज नेट पे कोई भी मंथ की क्विज मिल जाती है। हाउ आई प्रिपेयर्ड इज लाइक, मैंने तो क्या किया, एक कोई भी वेबसाइट पे जनरल आई यूज्ड टू सर्च की लेटेस्ट करंट अफेयर, तो मेरे को नाम तो याद नहीं है, बट एक वेबसाइट थी जहां से मुझे 200 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आयर मिल जाता था, और वो क्वेश्चन आयर मैं डाउनलोड कर लेता था मंथ का।
और वो क्वेश्चन मैं पढ़ के जो मुझे इम्पोर्टेंट, उसको भी मैं सोचो मतलब उसमें भी मैं लिमिट करता था। जैसे 200 क्वेश्चन का है, 200 क्वेश्चन में से मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे 80 पॉइंट, तो मैं 80 पॉइंट्स बना के वो मंथ की जीके कंप्लीट कर देता था, एंड दैट हेल्प मी अलॉट। तो इस तरीके से जीके का आपका खुद का पैटर्न हो सकता है, द वे यू वांट टू प्रिपेयर जीके यू कैन प्रिपेयर, ठीक है। द अनदर इज कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन बहुत बेसिक होता है। आई थिंक so most of us in our generation knows computer। हम लोगों ने कंप्यूटर की बेसिक लर्निंग हमारे स्कूल में ली है। हम में से इस जनरेशन के सबको, नॉट सबको, बट 70% लोगों को कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है। आप लूसेंट आती है, लूसेंट के पीछे कंप्यूटर से रिलेटेड 8 पेजेस होते हैं छोटे छोटे से, वो पढ़ लो तो मुझे लगता है आउट ऑफ 10 4 to 5 मार्क्स की जीके तो वो लूसेंट के 8 पेजेस में से कवर होगा। सेकेंडली, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पर 50 क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर करके 50 क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर करके बेसिक वीडियोस चले हुए, ठीक है। तो मैं तो क्या करता था कि पढ़ने के बाद जब मेरा फ्री टाइम होता था तो मैं वो वीडियो स्पीकर पे लगा के छोड़ देता था, और वहां से वो जो स्पीकर होता था वो क्वेश्चन भी बोलता था, उनके आंसर भी बोलता था। या फिर मैं मतलब कुछ भी काम कर रहा हूँ तो यूट्यूब चला के बैठ जाऊंगा सामने, और टाइम पास के तौर पे मैं वो कंप्यूटर के वीडियोस देखता था। एंड बिलीव मी, मेरे 10 में से 10 आए थे कंप्यूटर में, बिकॉज बहुत बेसिक कंप्यूटर पूछते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है 10 में से 10 लेना। बट मेन चीज है कि आपके मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो समहाउ अगर कवर करना है तो कंप्यूटर इज द थिंग जहां आप इजीली कवर कर सकते हो। आई रिमेम्बर 150 में से 131 कट ऑफ गया था हमारा। तो वो जो कट ऑफ है उसको छूना इजी नहीं होता है, बिलीव मी। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ऐसे मत होना कि हमने पेपर दिया और हमारा 110 आ गया, हमने सोचा यार बिना पढ़े दिया था, हमारा 110 आ गया तो अगले साल हम पढ़ के थोड़ा बहुत पढ़ के 130 पे ले ही आएंगे। बिलीव मी, ये जो 110 से 130 का डिस्टेंस है ये ही बहुत डिफिकल्ट है। 110 तो हर कोई आएगा, मेहनत करके तुम 120 पे आओगे, बट टू रीच द टारगेट ऑफ 133 to 135 you need to put lot of effort जो नहीं आते। So don't be overconfident about anything, just prepare। 110 आ गए, well and good, but believe me जो बिना पढ़े देते हैं सबके 110 आ जाते हैं। एमपी में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, अगर आपको लॉ का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप 110 स्कोर इजीली कर लोगे, बट 110 से जो 135 का डिस्टेंस ट्रेवल करना, दैट इज वेरी टफ है। अगर वो ट्रेवल कर लिया देन एमपी आपका खुल गई। बाकी 10 मार्क्स की बची जीके, वो सॉरी इंग्लिश, ठीक है। इट्स अ वेरी बेसिक इंग्लिश, ठीक है। प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब पूछते हैं वो लोग। आप पास करके पेपर्स लगाओ, 4-5 क्वेश्चन उसमें से हो जाएंगे। सब इंग्लिश मीडियम से अगर जो पढ़े हुए हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों का तो इजीली मुझे लगता है 10 में से 7 स्कोर तो आ जाना चाहिए। बाकी जो हिंदी मीडियम की एक्सपीरियंस है वो अगर थोड़ा सा प्रोनाउंस, एडजेक्टिव और बेसिक ग्रामर्स पे, टेंसेस पे ध्यान देंगे, प्लस दे विल फोकस ऑन दी एंटोनिम, सिनोनिम एंड तो उनका इजीली अगर आप 10 में से 5 भी स्कोर कर लेते हो देन दैट्स अ डिसेंट स्कोर। बट एक चीज लॉ पे अच्छी पकड़ चाहिए इनकी में, आउट ऑफ 110 एटलीस्ट यू शुड टारगेट 100 मार्क्स। yes अगर आप 100 से कम ला रहे हो देन बिलीव मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर एमपी, बिकॉज आप सोचो ना कि वहां 150 में से 140 तो हो ही गया, तो बाकी जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर्स में से यू कैन लूज लाइक 5 to 10 मार्क्स मोर, देन दैट्स वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज इंग्लिश में आप कितना भी कोशिश कर लो, वी आर नॉट ऑल एक्सपर्ट्स इन इंग्लिश, तो हमारे 10 में से 7 और 8 और 9 मैक्सिमम स्कोरिंग होता है, तो हम 1 या 2 नंबर तो लूज वहां कर देते हैं। मेरा जीके खराब था, मैं जीके में मेरे तो 20 में से 12 आए थे, तो मैंने 8 नंबर तो अपने जीके में ही लूज कर दिए, ठीक है। yes बाकी मेरे लॉ में अच्छे थे, लॉ में आई स्कोर्ड लाइक 110 में से 104 के आसपास, तो इट वाज इजी फॉर मी टू क्लियर प्रीलिम्स। तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, मेक श्योर कि लॉ में मतलब जो हम बोलते थे एज अ स्टूडेंट की छोड़ के आना है पेपर, तो लॉ में यू हैव टू क्रैक द पेपर एट एनी हाउ, मतलब यू हैव टू स्कोर अबव 100, दैट इज द की टू क्लियर द एमपी प्रीलिम्स। Right, sir. So yeah, you like basically told us the detailed comprehensive strategies for the preliminary. So sir, the basic question comes like when you were preparing for preliminary examination,
तो आपकी इंटेंसिटी कितना रहती थी, मतलब दिन में कितना क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व फॉर द प्रेपरेशन, एज इन लाइक देयर इज पीपल बोलते हैं ना लाइक मैं तो एक दिन में 600 सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, ऐसा ऐसा कुछ. So sir, please tell like also there's another question that always comes up about the learning of section, because preliminary में the section number that should be on your tips, right sir? So आप सेक्शन कैसे याद करते थे, ऑल्सो लाइक आप कितने एमसीक्यूज लाइक पर डे सॉल्व करना लाइक बिफोर 1 month ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन? अच्छा ठीक है, ठीक, एक मंथ पहले तो कोई आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आप ऑब्जेक्टिव टाइप पास में लगा के रखते हैं। एक मंथ पहले सिर्फ आप पास किया पेपर लगा, यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन। अगर आप सोचो कि एक महीने नोटिफिकेशन आया है, आपसे 1.5 महीने बाद पेपर है और आप सोचो मैं हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव लगाने बैठ जाऊँ, देन मुझे लगता है दिस इज नॉट समथिंग वेरी वाइज, यू शुड नॉट डू दैट। ये सब आपकी प्री प्रिपरेशन होना चाहिए। जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा मैं वो यूनिवर्सल की किताब छूंगा भी नहीं, इतनी मोटी किताब देख के ही मुझे चक्कर आ जाएगा कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। इफ आई गो थ्रू दिस बुक आई नीड लाइक 4 to 5 months और मेरे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, दैट टू आई विल बी वेस्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, गो थ्रू योर नोट्स, दैट इज द बेस्ट की 1 महीने पहले। सेकेंडली, पास्ट ईयर पेपर्स लगाओ, आपका टारगेट कंप्लीट रखो, मतलब 1 महीने पहले तो आप डिवाइड करके रखते हो कि मैं हर सब्जेक्ट को इतने दिन में कंप्लीट कर लूंगा, अपने नोट्स पढ़ लूंगा, डायरेक्ट पढ़ लूंगा और पास्ट ईयर पेपर्स भी लगा लूंगा। ठीक है, क्योंकि 1 महीने में आपको 3 रिवीजन करते हैं, जब आप 3 रिवीजन करोगे तब जाके आपका पेपर निकलेगा। तो 1 महीने पहले हमें कुछ नया नहीं पढ़ना, 1 महीने पहले हमें जो पढ़ा हुआ है सिर्फ उसे ही रिवाइज। हाँ, नए में क्या पढ़ना है, जीके पढ़नी है, कंप्यूटर्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ये सब पहले से मत पढ़ना, बहुत फालतू के सब्जेक्ट है इन सेंस कि यू डोंट नीड टू गिव मच टाइम ऑन लाइक जीके और कंप्यूटर्स और फॉर एमपी। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एमपी। इंग्लिश यू कैन प्रिपेयर इन 2 days, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम वाले डेली 1 घंटा पढ़ जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर्स हार्डली 3 से 4 घंटे में प्रिपेयर हो जाता है। तो आप किसी भी एक दिन बैठिए, लोकल जीके रात को अगर 3-3 घंटे 2 दिन पढ़ लिए तो लोकल जीके प्रिपेयर हो जाएगा। हाँ, जीके को डेली 1 घंटा दीजिए दिन में, करंट अफेयर्स को, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो 1 महीने में सबसे अच्छा जीके प्रिपेयर होता है, पहले से प्रिपेयर करोगे भूल जाओ, पर नोट्स पहले से बना के रख सकते। ठीक है, सेकेंडली इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग मेरा कुछ इंटेंसिटी से नहीं था, मेरा मन जो होता था कोई मैं टारगेट बना के नहीं सोचता था। देखो, लोगों की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, कुछ मतलब देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट रीड लॉट ऑफ द ओनली वन सब्जेक्ट इन अ डे, दे विल गेट बोर्ड, but for with me the thing was different. For me, if I have taken IPC, so until and unless I complete full IPC, I won't move to another subject. So I used to pick one subject at a time, not 2 subjects or 3 subjects. What people usually do is like they'll pick IPC, CRPT, CPC. So they'll give 2 hours for IPC, 2 hours for CPC, and 2 hours for CRPT. Okay. But for with me the case was different. I'll pick one ARX and I'll like कि नहीं मैं इसको पूरा करके ही हटाऊंगा, मतलब ये मेरी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहिए। ठीक है, this kind of strategy आया। So what I used to do, जैसे मैंने subject pick कर लिया, so I'll go through my notes. So I used to study my notes. After going through my notes, I used to pick BRX. अब नोट्स में तो क्योंकि बहुत मेन से रिलेटेड हो गया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई। अब जब मैं अपने नोट्स उठाऊंगा, अब BRX उठाऊंगा तो BRX में वो सेक्शन तो पढ़ूंगा ही, प्लस वो सेक्शन भी पढ़ूंगा जो नोट्स में कवर नहीं है, बट दैट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे पता चल गए हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर 6 months और मैं पेपर लगाते हुए और सब चीज करते हुए मुझे एक अंदाजा पता है कि मुझे आईपीसी के BRX में कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो आई विल गो थ्रू दैट। BRX जो होते हैं ना, बेसिकली बहुत जो हमारे लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, तो आपको लगता है कि कैसे मतलब करेंगे, तो मैं एक चीज बताऊं, बहुत स्ट्रेटेजिकली और बहुत प्लानिंग से बनता है कोई भी अगर एक्ट बनता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है BRX, और कहीं ना कहीं एक चेन बन रही होती है। बिलीव मी, जब आप फर्स्ट सेक्शन से आखिरी सेक्शन तक आओगे तो आप देखोगे यार एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन रिलेटेड है, तीसरा सेक्शन रिलेटेड है, चौथा सेक्शन। चैप्टर चेंज होता है तो शायद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़े कि यहाँ चैप्टर चेंज हो गया, बट चैप्टर्स भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब जैसे मैं CRPC की बात करता हूँ, तो वो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है। इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है, उसका कंप्लेंट आ जाता है,
कंप्लेंट कंप्लीट होता है, उसके बाद चार्ज आ जाता है, चार्ज के बाद आपकी ट्रायल्स आ जाती हैं। तो कोर्ट में हम क्या करते हैं? सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है या फिर हमारे सामने कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट जब प्रस्तुत हो जाती है तो हम उसको डॉक्यूमेंट वगैरह देते हैं, वही है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जब वो दे देते हैं तो उसके बाद हम चार्ज फ्रेम करते हैं, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का काम करते हैं। जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं तो हम उसका ट्राई करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायल दे रखी है। तो अगर आप एक बेसिक प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हो एज अ लॉ, तो मगअप करना बहुत इजी होगा। मैं मना नहीं करता कि सेक्शन मगअप करने पड़ते हैं, बिल्कुल करने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर हम डिफरेंट बात करें तो सबसे पहले ग्रीवियस हर्ट, फिर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, punishment for causing voluntary causing grievous hurt by dangerous weapon। तो हम देखेंगे कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है कि पहले डिफाइन किया, फिर उसका नॉर्मल क्या होगा, फिर एक डेंजरस वेपन के संग कितना होगा, उसके बाद कितना होगा। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली हमारे लेजिस्लेचर्स ने ये जो बेयर एक्ट बना, so you don't need to mug up them blindly। आप अपना दिमाग का उपयोग करिए, apply your mind and see, make your own strategy and believe me, the only thing which is required to mug up bear act is पढ़ो पहले। Once you will start studying it, believe me, आपको automatically वो bear act याद हो जाएंगे, but you need to like study। जब आप करते हो ना तो आप इतने अच्छे से याद करते हो कि हाँ देख, रिकॉर्ड के बाद ये था, रिकॉर्ड के बाद वो था, हैंडराइटिंग था, हैंडराइटिंग के बाद ये था, वो था। मतलब आपको बेयर एक्ट आपकी आंखों के सामने आ जाता है, इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? करेक्ट। बिलीव मी, आज भी जुडिशियल प्रिपरेशन के बाद से वो चीजें क्लियर। Correct. So yeah, that's and it seems like enjoy करके study करना, that's very important. Also, one needs to understand the process. Like they just need to mug up things like just like that. They need to understand the process. So sir, we have like talked about preliminary. So sir, please share something about the mains writing, like how you prepared for that. Also, like nowadays there is a trend कि अगर if you have started with the preparation, तो what the people are doing or the aspirants are doing, they start with the mains preparation कि अब हम answer writing start करते हैं, preliminary we'll see at the later stage. So what was your strategy at that time? Yeah, please share your that. पहली बात तो 4 पेपर आते हैं, एक क्रिमिनल का पेपर आता है, एक सिविल का आता है, एक जजमेंट राइटिंग एंड चार्ज फ्रेमिंग का मेकिंग एंड चार्ज फ्रेमिंग का पेपर आता है, and the last one is अपना ये essay writing and translation का पेपर है। These are the 4 papers. So I'll not talk about the essay and translation। अच्छा ठीक है, we'll talk if there are some questions, ठीक है? But कैसे प्रिपेयर करना है, like prelims और mains में बहुत अंतर होता है। prelims में बेयर एक्ट से काम चल जाता है, MP में कई हद तक mains में भी काम चल जाता है, बट वही डिफरेंस आ जाता है कि मेंस में वो 2 नंबर से जो रुक गया था पेपर, अगर बेयर एक्ट के अलावा थोड़ा सा और फोकस किया होता तो नहीं रुकता वो 2 नंबर से। तो अगर आप एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हो तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज लाइक यू शुड मेक योर ओन नोट्स। आप कोई भी एक बुक पढ़िए, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस। आपको मेंस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। एमसी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं आते, बट 2018 में जो पेपर आया था दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड पेपर। मतलब आंसर बहुत इजी थे उनके, बट क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए गए थे कि आपको ये एसेस करना मुश्किल था कि इस क्वेश्चन में मुझे लिखना क्या। तो वो चीज तभी आप एसेस कर पाओगे जब यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन योर माइंड। So conceptual clarity is very important for mains, right? बाकी mains में अब जहाँ तक है आंसर राइटिंग पैटर्न एंड ऑल की चीज, देखो if you are good at writing then you don't need to practice। मेरा कॉलेज से ही आंसर राइटिंग पैटर्न बहुत अच्छा था। बिलीव मी, मैंने मेंस के पहले कभी है ना, मतलब कॉलेज पास करने के बाद कभी लिखा ही नहीं था इतना बड़ा पेपर। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने मेंस में अपेयर होके ही लिखा है, and it was very easy for me because like मेरी writing skills मुझे मालूम थी यार मेरा क्या है। सेल्फ एसेस करो, तुम्हें लगता है अगर कमी है and you need to practice for your writing skills, then आप फर्स्ट ईयर पेपर उठाओ और उनके आंसर लिखना चालू करो और सेल्फ एसेस मत करो, हमेशा दूसरे को दिखाओ। बिकॉज आप कितना भी आंसर अच्छा लिखोगे, दूसरा 4 गलती निकाल ही देगा। एंड बुरा मत मानो उस चीज को,
बिकॉज वो निकाल रहा है, तो ये कोई आपका एग्जाम नहीं है जहां आपको उसने फेल कर दिया, पास कर दिया। शायद वो बता रहा है तो कहीं ना कहीं इंप्रूव करो, दैट विल हेल्प यू। तो अगर राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मुझे लगता है तब भी नहीं, जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाए, प्रीलिम्स देने के बाद जब आप मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा आईपीसी कंप्लीट हो गया है मेंस, तो मैं आईपीसी से रैंडमली 4 क्वेश्चन उठाऊंगा और वो 4 क्वेश्चन लिखूंगा, और 4 क्वेश्चन अगर मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता हूँ तो मैं सब्जेक्ट वहीं ड्रॉप करूँ। यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम कि मैं सारे पास के क्वेश्चन लिख के देखूँ। आप वो होता है ना पिक एंड चूज वाला, चूज करो कि हाँ ये 4 क्वेश्चन लिख के देख लिया। सी यू शुड हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। इफ यू योरसेल्फ हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ देन आई थिंक सो नोबडी कैन स्टॉप यू। तो अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंस है, 4 क्वेश्चन लिख के भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिलीव में अगर आप बुरा लिखते हो तो वो 8 क्वेश्चन लिखने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट खुद से ऑनेस्टी रखना कि मैंने ये जो 4 क्वेश्चन लिखे हैं, अगर मुझे लगता है ये बेस्ट ऑफ माई है तो बिलीव मी कि आपको कोई नहीं रोक सकता। बट आपको लिखने के बाद लगता है कि नहीं यार इसमें ये कमी थी और मेरे को और बेटर कर सकता हूँ, तो फिर आपको खुद को मालूम है तो और बेटर करिए। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दैट। सो दैट इज द वन थिंग फॉर आंसर राइटिंग। अब जहां तक जजमेंट राइटिंग की बात है, तो दैट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आप एक नाम जोशी सर की बुक आती है एमसी के लिए, एक भारद्वाज सर की बुक आती है, उन दोनों में से कोई भी एक बुक बाय कर लीजिए। फॉर्मेट आप बुक से देख के कर लीजिए। फॉर्मेट देखने के बाद आपको 3 चीजें होती हैं जजमेंट। सबसे पहले तो एक फॉर्मेट होता है, सेकंड इश्यूज होते हैं, इश्यूज करने के बाद आप एविडेंस करते हो, और एविडेंस करने के बाद मतलब एविडेंस को सिलेक्ट करते हो कि ये हमारे पास एविडेंस क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप मार्शलिंग करते हो। मार्शलिंग एंड एप्लीकेशन इज डिफरेंट। मार्शलिंग इज लाइक सिलेक्शन प्रोसेस where you go through this that this evidence is relevant, this would be relevant and this would be relevant, and appreciation is different part. तो जो जजमेंट राइटिंग है उसमें यही पार्ट होते हैं आपके, एंड कंक्लूजन। तो आप अगर फॉर्मेट आता है, इश्यू मेकिंग आता है, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस एंड कंक्लूजन। तो अगर आप कंक्लूजन सही निकलेगा, अगर आपने एप्रिसिएशन और मार्शलिंग सही की, तो मेरे को लगता है कि 1 या 2 जजमेंट लिख के देखना। जब हम लोग पढ़ते हैं हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, क्योंकि वहां पर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं पूछते हैं वो लोग, बिकॉज आप अभी तक जज हुए नहीं हो। जजमेंट राइटिंग इज समथिंग जो अब हमने सीखी है। बिलीव मी, मुझे जुडिशरी में 1.5 साल हो गया, आज भी मैं सीख रहा हूँ। इट्स अ नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस। तो मतलब आज भी मैं जजमेंट राइटिंग सीख रहा हूँ। तो आप तो एक ऐसी स्टेज पे हो, वेरी रॉ स्टेज पे, जहां पर आप एंटर भी नहीं किए हो, तो वहां पर वो आपको बहुत टफ नहीं रहेगी। तो डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। फॉर्मेट अच्छे से आता है, इश्यू मेकिंग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, और 1 या 2 जजमेंट में सिर्फ लिख के देखिए कि आप एविडेंस को अच्छे से मार्शलिंग कर पा रहे हो और एप्रिसिएशन कर पा रहे हो। फॉर मी दैट वाज सफिशिएंट। मैंने तो एक भी लिख के नहीं देखा था, मैं तो नाम जोशी सर की बुक ली, खोली, 4-5 जजमेंट ऐसे पढ़ के देखे, दैट टू एग्जाम की मॉर्निंग। मेरे पास पहले से कुछ पढ़ के नहीं आता। मैं जुडिशरी के जजमेंट राइटिंग के लिए आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर लाइक पास्ट 2 years। आई हैव सीन मेनी जजमेंट ऑफ जजेस यार। आई हैड प्रैक्टिस इन कोर्ट, तो मुझे मालूम था कि जजेस कैसे लिखते हैं जजमेंट। तो आई वाज वेरी श्योर। मैंने तो बुक, जैसे अपन फॉर्मेट देखते हैं, तो फॉर्मेट देख के गया और मैंने दिया, एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन द जजमेंट राइटिंग पेपर। तो वो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। माय स्ट्रेटेजी वर्क्स इन माय केस, but it is not necessary that my strategies will work in your case also. So you have to make your own strategies. You have to plan according to your ability and according to your strength. मैंने अपनी abilities और अपनी strength के हिसाब से अपनी strategy को build up किया था। आप अपनी ability और strength के हिसाब से कीजिए। सबसे पहले आप self perception कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। Right, sir. So as we are talking about the mains writing, sir, the questions that are coming from the participants, so people are asking about the standard books which you referred. So could you please give a brief of the standard books which you referred? No books. No not books. a single book. I only referred Rahul sir notes, and I referred like Rahul sir के notes इतने comprehensive होते थे कि मतलब वो नोट्स पढ़ लोगे तो 90% ऑफ दी क्वेश्चन तो वो मेंस का आपका राहुल सर के नोट्स से कवर हो जाता था। तो मैंने उन नोट्स को इतने अच्छे से पढ़ा है। राहुल सर हैज बीन माय गुरु, तो मतलब इसलिए
हेल्प मी अ लॉट कि मतलब उसको इतने अच्छे से पढ़ा है मैंने उन नोट्स को कि मुझे प्रॉब्लम ही नहीं आई, कभी कोई बुक पढ़ाई नहीं, मैं बुक पढ़ ही नहीं सकता। आई हीट टू रीड बुक, मतलब ऐसे कम्प्लीटली। क्वेश्चंस पढ़ना इज इजी, बट मेरे को कोई पूरी किताब हो गया एंड शुरुआत से एंड पढ़ ले तो मैं नॉवल पढ़ लूंगा यार, दैट इज मोर इजी फॉर मी। तो Yes, मैंने तो yes. राहुल सर के नोट्स पढ़े थे, प्लस बेयरक्स पढ़ा था। बेयरक्स पे अच्छी कमांड थी, राहुल सर के नोट्स इतने अच्छे थे कि मतलब वो 90% तो मेरा मेन किसी से क्लियर हो गया। तो Correct. आई मतलब, पर अगर आपके नोट्स नहीं है तो बिलीव मी, मेरे गुरु तो मेरे को यही बोलते थे कि आप कोई भी एक सबसे पतली जो किताब होती है ना मार्केट में, वो उठाओ पढ़ लो। कोई किताब बुरी नहीं है, किसी किताब में गलत नहीं लिखा है, बहुत स्टैंडर्ड का नहीं लिखना है, हमें बेसिक्स लिखना है, और बेसिक्स हर किताब में होते हैं। तो सबसे मोटी किताब मत उठाना कि हाँ ये पढ़ के मैं डर जाऊंगा, मैं ये वो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एमपी जैन भी आती है, और इलाहाबाद J.N. Pandey. जे.एन. पांडे, राइट, इलाहाबाद पब्लिकेशन से जे.एन. पांडे आता है। तो बिलीव मी, जे.एन. पांडे इज मच बेटर फॉर द जुडिशियरी। क्यों? बिकॉज आपको कंसेप्ट तो मालूम ही है फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल का, अब आपको अपने आंसर को थोड़ा गार्निश करने के लिए 4-5 चीजें चाहिए। जे.एन. पांडे खोलोगे तो हर सेक्शन पे भर भर के आपको लाइन में है ना 10-12 पेजेस तो केसेस के मिलेंगे, जहाँ पर बहुत शॉर्ट में केसेस दे रहे हैं। हाँ, कई बार जे.एन. पांडे में फैक्ट गलत स्टेट कर देते हैं, वो बात अलग है, बट इतनी तो जब हम लॉ ग्रेजुएट करके आते हैं तो हमें पता होता है कि ये लैंडमार्क केसेस में क्या हुआ है, वहां पर लैंडमार्क केसेस भी लिखने होते हैं। तो जे.एन. पांडे से हर सेक्शन पे, हर फंडामेंटल राइट के सेक्शन पे मैंने जे.एन. पांडे से 4-4 प्रिपेयर कर ली। ये फंडामेंटल राइट में पक्की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 2 क्वेश्चन आने हैं तो समझ लो दोनों की दोनों क्वेश्चन फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन से ही आने, डीपीएस में फंडामेंटल राइट के, तो वो कर लो। तो इस तरीके से आप कोई भी बुक उठा लो, बुक डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज आप किससे प्रिपेयर। Correct. Also, sir, in mains writing, we have seen that translation also plays an important role, and also like Hindi से English में convert करने में थोड़ा सा problem होता है. And so, sir, tell your strategy how you followed. Did you referred any book or something for that also? I don't. Yes. अच्छा, बिलीव मी, अब मेरी हिंदी अच्छी है, मतलब मैं लिख लेता हूँ। मेरे हिंदी में 20 में से 6 मार्क्स आए होंगे मेंस में, बिकॉज लाइक उस समय मेरी हिंदी बहुत खराब थी। अब तो नाउ आई एम प्रोनाउंसिंग माय जजमेंट्स इन हिंदी, आई एम राइटिंग माय ऑर्डर्स इन हिंदी, एंड यू नो डांट खा खा के अब मैं हिंदी अच्छी सीख गया हूँ। देयर इज नो शेम इन टेलिंग कि मैंने बहुत डांट खाई है मेरी ट्रेनिंग में, ठीक है। बट हाँ, मतलब ये एक ड्रॉबैक था कि शायद मैंने जब फर्स्ट टाइम मेंस दिया था तो मेरा 20 में से 0 ही आया होगा। तो मतलब मेरा जो 2 नंबर से रुका था, अगर मेरी वो चीज अच्छी होती तो शायद मेरा नहीं क्लियर, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम नहीं क्लियर हो जाता। बट क्या हुआ, देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ना, तो प्रैक्टिसिंग करते करते तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदी यूज होती है, तो मेरी हिंदी थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई थी। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि आपको हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। द थिंग विच विल हेल्प यू इज लाइक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, दैट विल हेल्प यू पास योर पेपर से बेस्ट। अगर एमसी के लिए करना है तो लीगल वर्ड्स में ही प्रॉब्लम आती है। बेसिक हम सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं 1-2 शब्दों में फंस जाते हैं, जिसके कारण हमारा सेंटेंस नहीं बन पाता। पास योर पेपर्स उठाइए आज तक के, वहां पर जितने भी ट्रांसलेशन है उन ट्रांसलेशन को लीजिए, उसमें जो जो लीगल वर्ड यूज हुए हैं और जो जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज हुए हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, उन वर्ड्स को सीखिए और उनको पहले पास योर पेपर्स को ट्रांसलेट करना सीखिए। अगर ये कर लिया तो मुझे लगता है मेरी गलती थी, अगर मैंने कर लिया होता तो बहुत इजीली हो जाता, बिकॉज वही वर्ड्स हैं यार, आपको कुछ डिफरेंट वर्ड्स नहीं पूछ लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पूछेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट इज संविदा, और लाइक आप जो भी शब्द यूज करना चाहो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज पंजीकरण। तो मतलब ये छोटे छोटे से शब्द हैं, जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। तो पास के पेपर्स आर द की इन एमपी फॉर द ट्रांसलेशन। अगर आपने पास के पेपर से ट्रांसलेशन कर लिए हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। प्लस गूगल इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां पर आप जाइए, लीगल वर्ड्स टाइप करिए, ट्रांसलेशन ऑफ लीगल वर्ड्स इन हिंदी, तो यू विल गेट अ लिस्ट। तो वो लिस्ट को थोड़ा सा देख लीजिए, कई बार आपका लक अच्छा होता है, निकल जाता है उसी में आपका। तो दैट इज द मेन की, मतलब जो मुझे लगता है आपको हेल्प करेगी सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन में, इज द पास्ट के पेपर।
Right, right. So we have talked about almost all the parts of means writing. So let's come to the interview section. So, sir, like interview section में, what was your like good experience? Share your questions. What questions were asked by the interview board, and also your good experience if you have any. See, my interview was for like 40 minutes, तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि 40 मिनट चला है. Because I entered the room and they started putting questions to me, I started answering to them. मैं बाहर निकला और मैंने अपने घर पे फोन करके बोला यार मेरा तो 7-8 मिनट लिया होगा इंटरव्यू, अब मेरे से बोल दे जाओ. बट मेरी एक फ्रेंड थी जो अब फ्रेंड है, मतलब नाउ शी इज आल्सो अ जज, सो शी वाज वेटिंग इन द वेटिंग रूम एंड शी लेटर ऑन टोल्ड मी कि आपका इंटरव्यू 40 मिनट चला था. मैंने कहा ओ माय गॉड, आई हैड नो आइडिया, आई थॉट दैट माय इंटरव्यू वाज फॉर लाइक 8 to 9 मिनट्स. तो इंटरव्यू में जो मेजर टूल होता है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और मेरे कलीग्स एंड फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से, ऑनेस्टी. अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपका इंटरव्यू क्लियर है, आप ऑनेस्ट नहीं हो तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं है. फर्स्ट थिंग, ठीक है. और भी फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट है. जब मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा उन्होंने, मतलब मेरे से उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि आई वाज प्रैक्टिसिंग, तो मैंने पूछा एक टाउरी डेथ का केस था ना, 306 का केस था, ठीक है, अबेटमेंट टू सुसाइड का. तो दे स्टार्टेड पुटिंग सम क्वेश्चंस टू मी और मैंने बोला कि मैंने उस केस में आर्ग्यू किया था, एक्सपर्टाइज कराया था अपने क्लाइंट का. तो मेरे से पूछते हैं तो आपको नहीं लगता आपने गलत करा दिया? मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं लगता मैंने गलत करा दिया. बीइंग अ लॉयर इट वाज माय ड्यूटी, so I did my duty and I didn't follow any unfair means. I did what I could do for my client. I put my best of my knowledge to see him and that was my duty. So एक honest answer था. आप ये मत बोलो कि नहीं सर वो उसका केस ही ऐसा नहीं था, उसका केस ही वैसा नहीं था और उससे तो गलत बता दिया गया था. और you have to be honest. You have to say कि मुझे नहीं मालूम वो सही था कि गलत था, मुझे ये मालूम था कि मेरी ड्यूटी थी, मैंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म. सेकेंडली एक क्वेश्चन आया, फिर इसी से एक क्वेश्चन पुट किया कि अच्छा तो आपने कुछ रूलिंग भी पेश की होंगी. मैंने कहा बिल्कुल की थी. तो स्टेट एनी 3 रूलिंग. मैंने बोला सर राइट नाउ आई डोंट रिमेम्बर इवन अ सिंगल. मैंने कहा दैट वाज फ्रॉम लाइक एमपीएचजे और तो नहीं कहाँ से उठाई थी मैंने रूलिंग. राइट नाउ आई डोंट रिमेम्बर द नेम एंड इवन नॉट द साइटेशन, so I cannot remember right now, but I have cited for around like 6 to 7. They said okay. So that was my honest reply. नहीं आता बोलो साफ साफ नहीं आता. फिर एक क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में उन्होंने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पे पूछ लिया, सेक्शन 8 पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे, एंड दैट वाज आउट ऑफ दिस सिलेबस. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो एक जुडिशियल एस्पिरेंट को तो नहीं आता, मतलब जुडिशियरी एस्पिरेंट को तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बहुत कम आता. So I like फंस गया मैं. So I'll not beat around the bush. I'll directly say sorry sir. मैंने बोला sorry sir, my apologies. मेरे को नहीं मालूम arbitration and conciliation है. But if I'll get the opportunity, I'll definitely go through the act. And next time if some case would be in front of me, I'm sure I'll be able to handle it. ठीक है. तो इन दैट वे मैंने उनको बोला एंड दे सेड इट्स ओके ओके. और मुझे उससे एक रिलेवेंट प्रोविजन आता था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में. देयर वाज आस्किंग द प्रोविजंस फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो मैंने कहा कि वहां तो नहीं मालूम मुझे आर्बिट्रेशन एक्ट में, बट आई कैन टेल यू सम प्रोविजन रिलेटिंग टू दिस इन ये अपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में. एंड आई टोल्ड देम एंड दे वर मोर देन हैप्पी विद दैट. सो ऑनेस्टी इज द मेजर. सेकेंडली आप कितने शार्प हो. टेक योर टाइम. बिलीव मी, वो इंटरव्यू जो ले रहे हैं ना वो एक तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, तो आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते. सेकेंडली बहुत हम्बल लोग, so you don't need to be like worry कि ये लोग होंगे खा जाएंगे, they will do something wrong with us or they will be rude or something. They are very humble people. As soon as you will enter into the interview room, they'll make sure that you first make yourself comfortable. मतलब they will provide you such an atmosphere कि आप खुद में comfortable feel करने में. Believe me. And जब आप खुद में comfortable feel करोगे, then they'll start asking questions. नहीं आता बोलो नहीं आता. अगर किसी क्वेश्चन में टाइम लेना है तो टेक योर टाइम. हाँ, बट दे विल ट्राई टू कंफ्यूज. आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर. वहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल काम करता है. तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट.
अच्छा, एमपी में एक चीज होती है कि आपको एकदम टेबल से, जैसे मैं अभी बैठा हूँ ऐसे नहीं बिठाते, यहाँ से चेयर में थोड़ी सी पीछे ऐसे कर लूँ तो ऐसे बिठाएंगे वो, जिससे वो कैंडिडेट को पूरा देख पाए ऊपर से नीचे तक। ऐसा नहीं है कि आप टेबल से पास बिठा दे, मेक श्योर दैट देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ लाइक 2-3 फीट फ्रॉम टेबल, तो एट द सेंटर ऑफ द रूम में आपकी चेयर होती है जहां पर वो आपको बिठाते हैं। तो आपको उनको ये दिखाना है कि आप नर्वस नहीं हो, पैर नहीं हिला रहे हो, अपने नाखून नहीं ऐसे ऐसे घिस रहे हो या फिर कांप नहीं रहे हो, बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको नॉलेज है तो बिलीव मी, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आप क्वेश्चन में इतना डूब जाते हो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता सामने कौन बैठा है। मेरे 40 मिनट 8 मिनट में बदल गए बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे पता ही नहीं चला कि इन लोगों ने मेरे से 40 मिनट बात कर ली, मुझे लगा 8-9 मिनट बात करके बता दिया। अच्छा, secondly, thirdly, they are not there to test your knowledge. बिकॉज आपने मेन क्लियर किया है, आपकी नॉलेज अच्छी होगी। कोर्ट में बैठ के आपको मगअप नहीं करना है, वहाँ आपका डायरेक्ट है। आज मैं जब चार्ज फ्रेम करता हूँ तो मेरे को कंपटीशन नहीं है कि मैं बुक नहीं छू सकता। मेरे सीनियर्स या जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है, जब भी कोई काम करो किताब जरूर खोलें, क्योंकि यहाँ अगर गलती करते हैं तो वो गलती इस प्रकार की गलती होगी जिसे माफ नहीं किया जा सकता, या फिर दैट विल कॉज अ सब्सटेंशियल हार्म टू पीपल। तो इट्स बेटर टू ओपन बुक। तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप सेक्शन मगअप करके बैठे हो और उन्होंने पूछा और आपने धड़ाधड़ उन्हें लाइक फर्स्ट लेटर टू लास्ट लेटर तक उन्हें डायरेक्ट का सेक्शन सुना दिया। नहीं, वो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका माइंड टेस्ट करने के लिए बैठे हैं। तो दे विल नॉट आस्क। तो उनने मेरे से लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन को कम पूछे। उनने क्या किया, मेरी ऑनेस्टी ज्यादा जज की। तो दे आस्क्ड मी कि देवांश, सपोज यू आर पोस्टेड एट योर होम टाउन एंड योर फादर इज अ कॉन्ट्रैक्टर, माय फादर इज अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। मेरे अंकल एंड ग्रैंडफादर वाज अ लॉयर, तो मतलब आई वाज थर्ड जनरेशन लॉयर, बट मेरे फादर इज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर से तो बहुत कॉन्टेक्ट होते हैं, पीपल विल बी कॉन्टेक्टिंग यू, तो हाउ यू विल हैंडल पीपल? मैं बोला सर इट्स वेरी इजी। मैंने कहा आई एम जज and judge is I will be a judge and judge is an unbiased and neutral person. I like according to it. So they said ki don't you think Devang is easy to say but it's actually difficult? I go indeed sir. Everything is difficult. Life is difficult. Being here is difficult. मैंने कहा when I'll sit on chair, I won't be Devansh Agrawal or any other person. When I'll sit on chair, I will be a judicial officer and I'll act according to it. And I'll act according to my designation and I'll be just fair and unbiased. So they were happy with my reply. You have to be like आपका माइंड शार्प होना चाहिए कि ये जब क्वेश्चन करते हैं तो मैं अपना ऑनेस्टी से जवाब दे पाऊँ कि भाई इतना आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजिकली प्ले भी करना पड़ता है ना। उनने एक क्वेश्चन में से पूछा कि भाई देवांश तुम इतना बढ़िया सूट पहने हो, इंटरव्यू में सब बढ़िया तैयार होके जाते बिकॉज दैट्स द गोल्डन डे ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो आप इतने अच्छे से तैयार, तुम्हारे फादर कॉन्ट्रैक्टर हैं, तुम तो बहुत अमीर खानदान से हो, जज की सैलरी में तुम्हारा क्या होगा? ठीक है, so they had this question because वो honestly कर रहे थे मेरी, ठीक है। Yes, correct. I know my needs and I think so I'll be happy to satisfy myself from the salary which I'll get from the judiciary. Plus there are certain benefits also. So overall this package is a very good package and I think so I'll satisfy myself with whatever I'll get from this job. So he said, benefits? What kind of benefits you are expecting? I said, so the first benefit is like you will get a huge amount of respect. So that is one of the major assets. Apart from that, you'll get house, different allowances, and you know, and a good environment to work. तो मतलब वो लोग आपको बार बार स्ट्रेच कर रहे थे, मतलब मुझे कि कहीं ना कहीं वो मेरी ऑनेस्टी को टेस्ट कर रहे थे। Correct. कि भाई हाउ ऑनेस्ट हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, क्या मतलब है, क्या नहीं है। तो आप ऑनेस्ट, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हाउ ऑनेस्ट यू आर। अच्छा, they will ask such questions also. नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन तो उन्होंने मेरे पूछे थे कि एफआईआर प्रॉम्प्ट है, नेम्ड है, तो क्या प्रिजम्पशन अजम्पशन हो सकते हैं एफआईआर से। अगर आपका इंजर्ड आई विटनेस है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। और 306 से स्टार्ट हो गए थे तो उसकी उन्होंने प्रिजम्पशन अजम्पशन और सारे केसेस वेसेस सब पूछ के, मतलब लॉ तो पूछते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल आस्क सच क्वेश्चंस आल्सो। तो दे विल टेस्ट योर ऑनेस्टी। एक और चीज है, कई बार वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं लड़कों से स्पेशली
कि भाई ये मेरे फ्रेंड से पूछा था, मेरे से तो नहीं पूछा, आई वाज लकी ना कि भाई तुम दिल्ली गए हो और दिल्ली में तुम अपने फ्रेंड के संग बार में गए हो और बार में जाके वहां पर आपको एक ड्रिंक ऑफर की है किसी ने, और ड्रिंक ऑफर करके तो आप उस ड्रिंक को पियोगे कि नहीं पियोगे। तो मोस्ट ऑफ फ्रॉम आवर जनरेशन इज लाइक दे लव टू बूज और लाइक मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो मतलब अपना अपना रहता है। कुछ लोग एकदम Right. सती सावित्री टाइप बन जाते हैं, नहीं सर कैसी बातें कर दी आपने और मैं तो सर छूंगा भी नहीं और ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। तो थिंग इज वो सब जानते हैं, शक्ल देख के समझ जाते हैं कि ये कितना पानी में सामने वाला है, ठीक है। तो मेरे एक फ्रेंड ने रिप्लाई किया कि मैं नहीं, और फिर उसने उसको बहुत सही किया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, और उसका नहीं है। एक फ्रेंड से पूछा पियोगे, बोला हाँ सर बिल्कुल पी लूंगा, उसमें क्या है सर, ऑफर कर रहा है, टेक अ ड्रिंक एंड इट्स ओके फॉर मी। तो वही क्वेश्चन एंड हो गया और वही उसको कुछ भी पूछा नहीं गॉट सिलेक्टेड। So it's not like something they were testing your honesty. Honesty is important, आप खुद से कितने ऑनेस्ट हो। कई बार ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं कि आप बाजार गए जज बन गए, तो ठेले वाला आपको स्पेशल डिस्काउंट दे रहा है 30% का, आप लोगोगे कि नहीं लोगे। Hmm. बट यहाँ पर ये होना चाहिए सर मैं फ्री में नहीं लूंगा, बट अगर मुझे लगता है कि हाँ ये डिस्काउंट ले सकता हूँ और इससे भी कोई नुकसान नहीं होगा तो मैं बिल्कुल ले लूंगा। मतलब मेरा ओपिनियन यही है, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं किसी से फेवर नहीं लूंगा भाई। आज मैंने फेवर लिया, कल ये आज मुझे फ्री में दे रहा है, कल से मेरे पास फ्री लेके आ जाएगा। बट अगर मुझे लग रहा है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है और 10% डिस्काउंट ये नॉर्मली भी दे सकता है और ये दे रहा है नॉर्मल दूसरों को भी देता होगा, तो मैं भी ले लूंगा 10% डिस्काउंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब these all are mind games, will play with your mind, will just to test your honesty, be honest with yourself, with your replies, be sharp। और लॉ की नॉलेज तो आप में होगी, अगर आप मेन क्लियर करके जा रहे हो तो होगी, और नहीं है क्लियरली बोल दो। बेसिक क्वेश्चन पे भी बोल दो, बेसिक क्वेश्चन पे सर राइट नाउ आई कैन नॉट रिमेम्बर दिस, वो बुरा नहीं मानेंगे वहां पर, एंड दे विल गिव यू गुड मार्क्स। आई गॉट लाइक मुझे 50 में से 35 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू। Okay. Also, yeah, that was, thank you so much, sir, for sharing such a good experience of your interview as well as the questions. So we'll be taking some of the questions from the participants. Also, they can directly ask from the sir. I can unmute them for a while. Please raise your hand. Meanwhile, there's one participant who is asking about your views over all India judiciary, sir. Yeah. See, all India judiciary right now is going to be implemented, and I think so few months, after few months, like 2-3 months, and by next year it will get implemented. But it is for SJ. Firstly, you should know, इतना अगर पढ़ा होगा तो अभी ये याद रखो कि वो अपन लोगों के लिए नहीं है, वो हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए है। इट्स अबाउट एडीजे, वहां पर जो सिलेक्ट होंगे वो एडीजे होंगे और सब होंगे। राइट नाउ व्हाट बेसिक डिफिकल्टी दे फेस इज लाइक व्हेन आई सिट ऑन माय बोर्ड, मेरे सामने जो लोग आते हैं टेस्टिफाई करने वो ग्रामीण एरिया से आते हैं, फ्रॉम रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में कई बार वो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, टाइम होने का चल रहा है, मतलब दे स्पीक सच लैंग्वेज जो मैंने कभी नहीं सुनी। So I also need to put my ears to be like completely open, and I have to listen to them carefully, then translate it to my mind, put it into the words in the sheet, ठीक है। तो अगर इमेजिन करो ऑल इंडिया जुडिशियरी में मेरी पोस्टिंग तेलंगाना हो गई या फिर किसी भी दूसरी स्टेट में हो गई जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज इज नॉट हिंदी और इंग्लिश, तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो उसके लिए आपको मुझे लगता है टेक्नोलॉजिकली बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा, जहाँ पर यू शुड हैव सच ट्रांसलेटर्स और सच ट्रांसलेटिंग मशीन्स जो इजीली उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर। बट द प्रॉब्लम इज इंडिया में इतनी रीजन वाइज इतनी, जैसे गुजरात में ही मैं रहता था, तो गुजरात में अहमदाबाद की लैंग्वेज इज डिफरेंट, महसाना की लैंग्वेज इज डिफरेंट, एंड वडोदरा की गुजराती इज डिफरेंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गुजराती। तो बड़ी मुश्किल से तो मैंने अहमदाबाद की गुजराती समझना सीखा था। फिर मैं दूसरी जगह सुनी तो मैंने कहा ये कौन सी बात है, बोले ये भी गुजराती है। The thing is कि ऑल इंडिया जुडिशरी में वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। अगर ये इम्प्लीमेंट कर लेती है गवर्नमेंट अच्छे से, तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द अकॉर्डिंग टू फ्यूचर एस्पेक्ट्स, और सब तरीके से कंपटीशन टफ हो जाएगा। बिकॉज अभी मेरे को एक लिमिटेड क्राउड से कंपटीशन है, सोचो जहां मैं 10,000 लोगों से कंपटीशन करता हूँ वहां पूरी की पूरी 1 लाख बैठेंगे, 2 सीट ज्यादा होंगी बट कंपटीशन ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना। तो वही बात है, तो अभी है नहीं वो। अगर सिविल जज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दैट इज ऑल इंडिया जुडिशरी कंसेप्ट इज नॉट फॉर सिविल जज, इट्स फॉर ओनली हायर जुडिशरी।
So right now focus on civil judgment. Right. So thank you for sharing your insights. There's one participant, Kajal. So Kajal, I'm unmuting you. You can directly ask a question from the sir. Sir, I want to ask you two questions. First is in the mains answer writing basic requirement क्या होती है आंसर की, मतलब basic चीजें ये तो होनी ही चाहिए. And second is कि recent और landmark judgment में से किसकी weightage एग्जाम में ज्यादा रहती है और recent के लिए हमें किस पे sources पे helpful रहेंगे हमारे लिए. अच्छा प्रीवियस का मतलब पहला क्वेश्चन है आपका आंसर फर्स्ट इज दैट कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए. कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप एक इंट्रोडक्शन लिखिए थोड़ा सा 2 लाइन का, बट टू द पॉइंट आंसर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अगर उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस, तो डोंट स्टार्ट विद कि ये क्या है, उसके बारे में एक पेज लिख के देन यू विल कम टू द प्रोसीजर. नो, डायरेक्टली द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर दिस इज एज फॉलोज, या फिर द प्रोसीजर फॉर दिस इज एज फॉलोज. ठीक है, तो फिर स्टार्ट करके पॉइंट वाइज लिखिए. 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट एंड कंक्लूजन. 3 चीजें लिख देते हैं, सफिशिएंट. यही स्ट्रेटेजी होना चाहिए. मैं तो ये करता था कि सबसे पहले डायरेक्टली टू द पॉइंट आंसर देता था. मुझे लगता था कि मेरे पास टाइम है, जो मैंने टाइम फ्रेम हर क्वेश्चन के लिए डिवाइड कर रखा था. उसके बाद मुझे लगता था कि मैं कुछ अपना एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, तो एक्स्ट्रा देता था और फिर वापस से जो मेन क्वेश्चन था उसको एक कंक्लूड करता था. क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, शुरुआत में जो मैं सोचता था कि स्टार्टिंग क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता है. तो जब स्टार्टिंग क्वेश्चन मेरा अच्छा होगा और लास्ट में मैं उसी चीज को कंक्लूड करके लिखूंगा तो आई गेट गुड मार्क्स. एंड यू नो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में यू डोंट नीड टू पुट मोर केस लॉज इनटू इट. रीसेंट लिखोगे, पुराने लिखोगे, कोई मैटर नहीं करता. रीसेंट कहाँ से लिखोगे, लैंडमार्क लिखोगे. मेरा तो मानना ये है रिसेंट में आप लोग कोई रोज के एमपीजेएस या जनरल पढ़ नहीं रहे हो, लैंडमार्क लिख लो, कोई बहुत है. मैं तो वो भी नहीं लिख पाया था. वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप लैंडमार्क जजमेंट लिखो. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है सिर्फ उसमें आपको लिख के आने पड़ेंगे. कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा है जिसमें आप रिसेंट लिख ही नहीं सकते. इंग्लिश केसेस चलते हैं वहां पर, बैंडले वर्सेस बैंडले और पता नहीं कौन कौन से केसेस चलते हैं. आपको वही केसेस लिख के आने पड़ेंगे इंग्लिश कोर्ट से, क्योंकि हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ वहां से उठाया है फॉरेन से. तो आप वहीं के केसेस लिख के आएंगे, आपको इंडिया के केसेस नहीं लिखने हैं. तो आप लैंडमार्क केसेस को फोकस करिए, रिसेंट केसेस छोड़ दीजिए. हाँ, एनआई के केस में कई बार वो एक बार रिसेंट केस पूछते हैं अगर कोई मेजर अमेंडमेंट आया है या फिर जिससे कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है लॉ में. और कई बार क्या होता है, जैसे लैंडमार्क जजमेंट आते हैं, नवजोत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर अपने जो भी विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ राजस्थान, सॉरी. तो कुछ केसेस हैं तो आपको पता होना चाहिए. अगर इनके क्वेश्चन आ गया तो ये लिख के आना इंडिया के केसेस. ठीक है, बाकी आप लैंडमार्क केसेस लिख के आओ. नहीं भी लिख के आओगे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आना. और जहां आपको लगता है कि आपको आंसर सब्सटेंशिएट करना है और आपके पास केस लॉस नहीं है, इलस्ट्रेशन कोट करो. मैं इलस्ट्रेशन कोट करता था. फॉर एग्जांपल, केस मालूम है, नाम नहीं मालूम, क्योंकि पुराना प्रिवी काउंसिल का कोई केस रहा होगा जहां मुझे बताया था पागल ने ऐसा कर दिया, इंसैनिटी पे था, तो मैं वो इलस्ट्रेशन करके लिखा है. आई थिंक सो आई गॉट गुड मार्क्स फॉर दैट. तो डोंट फोकस मच ऑन केस लॉस, फोकस ऑन कंसेप्ट. I cannot listen to you on your harm. Yes. Kajal, I believe you got your answer. Sir, there's this second question that is coming from Anuj Gupta, and he's asking that how much a book content should be included in a note making, because as we have also seen that there are some like take an example of Article 14. It's having a huge interpretation and everything, and also like in CRPC and procedural laws. So note making mein how much content need to be there so that it will be easy for us to remember at the last moment. So just give a brief on that. I will talk about Article 14 का ही एग्जांपल कंटिन्यू करके इस चीज को डिस्कस करते हैं. Yes sir. आर्टिकल 14 में 2 पार्ट है. ठीक है, आप बेसिक पे जाओ. अब आर्टिकल 14 में इतने लैंडमार्क केसेस और कंसेप्ट हैं, आप वो नहीं कर सकते, बट उसमें एक बेसिक सा कंसेप्ट है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल. ठीक है, 2 कंसेप्ट हैं. इन कंसेप्ट पे फोकस करते हुए आप आगे बढ़िए. इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, रूल ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी. ठीक है, देन देयर इज अ प्रिंसिपल जहां पर बोलते हैं आप एक इंटेलिजेंट डिफरेंशिया का कंसेप्ट होता है आर्टिकल 14 के अंदर. तो आर्टिकल में आपको पता होना चाहिए इंटेलिजेंट डिफरेंशिया क्या होता है और इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. बस दैट इज सफिशिएंट. अगर आप एक ओवरऑल अंडरलाइनिंग कंसेप्ट जानते हो आर्टिकल 14 का,
इतना होना चाहिए कि आर्टिकल 14 का अगर पूछ ले तो मैं 2.5 पेज लिख पाऊँ. दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टू सब्सटेंशियल, जहां कॉम्प्रिहेंसिवली मेरा सब कवर हो जाए. तो आप नोट भी उतनी बनाओ. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 पे मैं एक पैरा लिखूंगा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल पे एक पैरा लिखूंगा. फिर मैं लिखूंगा कि इट इंक्लूड्स द कांसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट डिफरेंशिया के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करूंगा. एक दो केस लॉ डिस्कस करूंगा, आराम से 2.5 पेज भर जाएगा मेरा. कंक्लूड करूंगा, इंट्रोडक्शन लिखूंगा कि आर्टिकल 14 इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट व्हिच प्रोवाइड डायरेक्ट की लैंग्वेज. तो यही जब लिखोगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे? जैसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था जिस पार्टिसिपेंट ने, तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता कि व्हाट इज आर्टिकल 14. मैं स्टार्ट करता आर्टिकल 14 इज वन ऑफ द मेजर फंडामेंटल राइट व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. आर्टिकल इज एज फॉलोज, डायरेक्ट की लैंग्वेज लिखता डबल इन्वर्टेड कॉमास में, उसके एलिमेंट डिस्कस करता, एलिमेंट में डिस्कस करता इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज बिफोर द लॉ. ठीक है, इनको डिस्कस करता. फिर ये डिस्कस करता कि व्हिच वन इज अ मोर पॉजिटिव कांसेप्ट एंड व्हिच वन इज अ नेगेटिव कांसेप्ट. फिर डिस्कस करता दिस इज नॉट जस्ट अ कांसेप्ट, हाउ दिस इज द मेन थिंग जो हमें आगे ले जाता है, बिकॉज़ इट कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंट डिफरेंशिया. फिर इंटेलिजेंट डिफरेंशिया का प्रिंसिपल डिस्कस करता, एक दो केस लॉ डिस्कस करता, कंक्लूड करता. हेंस we can see that under article 14 में जो भी उनका सवाल होता, उसी सवाल को अपनी लैंग्वेज में रिप्लेस करके उसे कंक्लूड कर देता, and that would happen. Right. Yes, that should be the format that one can follow up, of course. Like we have taken all the relevant questions so far. There's this question that is coming from Arya Jain, and she's asking that is there any reservation for seats in MP judiciary for physically handicapped person? Yeah, there is a reservation. And for example, हमारे टाइम पे जनरल की 60 सीट थी शायद. हाँ 60 सीट नहीं, 150 का था, 75 वैकेंसीज थी हमारे. हाँ 140 वैकेंसीज में से 70 जनरल की वैकेंसी थी. तो जनरल में भी आई थिंक तो 5% जो कोटा है वो उनमें 7 या 8% कोटा वो फिजिकली हैंडीकैप के लिए रख रखा है. तो हमारे राज्य में एक भी फिजिकली हैंडीकैप नहीं था, तो सिलेक्ट नहीं हुआ था. कोई शायद एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, जो भी रीजन रहा होगा. तो 70 में से 66 सीट ही बनी थी. वो जो 4 सीटें थी वो सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप कोटे के लिए थी. इसके लिए एमपी हाईकोर्ट की रूलिंग थी 2018 में जो पेपर हुआ था, उसमें ये था कि ये जो फिजिकली हैंडीकैप की जो सीट्स हैं, अगर ये फुलफिल नहीं होती तो एक जनरल कैटेगरी के नॉर्मल जो स्पेशली एबल्ड नहीं है उसे मिल जाए. बट उसमें एक रूलिंग आई थी कि नेक्स्ट ईयर से जो हमारा बैच था कि उसमें जो भी सिलेक्शन होंगे अगर स्पेशली एबल्ड जो पर्सन है हमें, तो वो उस सीट पे जो स्पेशली एबल्ड नहीं है वो सीट नहीं ले सकता, वो उन्हीं के लिए होती है. तो ओवरऑल आई थिंक देयर इज 8% रिजर्वेशन इन एवरी कोटा. एससी एसटी ओबीसी जनरल हर में आपका 8% अराउंड रिजर्वेशन. Correct. So Arya, I hope you got your answer. Sir, regarding the means examination, there's this question that I'm getting. Yes, how you manage to like manage your answer sheet during answer writing, like means answer writing, like means answer writing में do you get certain amount of like pages? कैसा होता है थोड़ा मैनेजमेंट? जस्ट टेल अस. कुछ नहीं होता, जितना लिखना है लिखो, अपना टाइम स्ट्रेटेजी डिवाइड करके रखो, आपको एक्स्ट्रा आंसर शीट मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बिलीव मी, जो एक्स्ट्रा आंसर शीट देगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो इतनी मोटी आंसर शीट होती है. अगर आप उसको टू द पॉइंट आंसर करोगे, हर क्वेश्चन अगर 2.5 से 3 पेज का भी लिख के आओगे तब भी वो नहीं बनेगी. वो 40-50 पन्नों की आंसर शीट होती है. तो ओनली आंसर शीट यू नीड अगर किसी पेपर में, तो शायद जजमेंट राइटिंग में भी रिक्वायर्ड होगी. ऐसे राइटिंग का एक पेपर हो सकता है जहां आपको शायद रिक्वायर हो जाएगी शीट. आपको मुझे लगता है बढ़ जाएगी आपकी इजीली, कोई टेंशन की बात नहीं है. आंसर राइटिंग पैटर्न, आंसर शीट जो होती है ना, आप बहुत अच्छी आंसर शीट देती है, रूल्ड आंसर शीट देती है एमपी. आप आराम से लिखिए, देयर इज नो लिमिट फॉर पेजेस एंड ऑल. Sir, Ira Mittal wanted to ask this one question. She's asking that do we get a separate answer or a separate paper for judgment writing in mains? Separate paper as in I didn't understand the question. She's asking that whether there used to be any separate paper for judgment writing in mains. Matlab like when you sit for judgment writing, so do you get
any separate paper, or you need to have directly write answer in a question paper? I guess. See, Just इससे tell us. point हो Just सकते हैं presentation में ये है कि एक separate paper judgment writing का होता है क्या? बिल्कुल होता है separate paper judgment writing का. Secondly, वो आपको ruled answer sheet ही देते हैं, उसी में लिखना होता है. आप अच्छे पेजेस होते हैं, A4 साइज के पेपर्स होते हैं, आप आराम से लिखिए, there is no problem. Judgment writing जिसे आप अपनी notebook में लिखते हैं वैसे ही वहाँ होना है. right. Okay, yes. For the preparation, yes. All right. So I'm just we have taken all the relevant questions, and still we are getting a lot many questions. Please listen to this video again. You will get clear. Sir has already told us very detailed, comprehensive strategies for MP judiciary. Also, I'll ask my participants to rate this particular webinar from 1 to 10. Also, those who are asking for coaching and guidance, so we at Law Seekho have also started with the judiciary online courses. So go and check that out from our link from our website. Sir, so I'll be asking you the last advice to the participants who are preparing for these judicial services. So please share your last words with us. See, I think what is most important is motivation. Make your own motivation stories. I had my motivation story because बहुत ups and downs आते हैं. जब आप prepare करते हो तो कई बार ऐसी circumstances आपके सामने आएंगे, आप manage करके जाओगे, दोगे, नहीं होगा आपका. That time don't get depressed. Make your own motivation stories. See, in the world that there are many people who are less able than us but doing better than us. So if they can do better than us, we can definitely do, because God has blessed us with many things. So always make your own motivation stories. Keep motivated yourself. Be positive. Do hard work. I'm sure you all are very good participants and you are very good students. You all are going to crack judiciary. All the best for your future. Thank you, sir. And thank you everyone for joining this session. And thank you so much, sir, for your valuable efforts and the time which you give to us, and how beautifully you told us about the strategies and everything, which definitely will help and motivate our participants to follow up. And thank you again for joining Law Seekho as an expert. So I'm signing off, everyone, and please stay home, stay safe. And thank you, sir, again. Thank you. I'm signing off. Yeah. And I hope I will be I will be of some use to the participants and your Law Seekho website. And Right. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you so much, sir. I'm signing off. Anu Bhatnagar, Webinar Executive. Thank you, everyone. Good.